Hello viewers, in today's discussion we shall be looking into how we can proceed with the division. Okay, and the case which we are discussing today is we will be taking up the denominators which are not ending in 9 but in 1, 3, 7. As you know, we are going on with the series of recurring decimal, and whenever we talk about recurring decimal, we would be looking up into the logic of Vedic maths, that how Vedic maths actually helps us in simplifying the calculation of recurring decimals. Okay, so the case we are taking today is where the number is not ending with 9 but with 1, 3 and 7. As we have taken up in the previous videos that how we can take up the division of 1 upon 19, 1 upon 29, 1 upon 39. Okay, so we can really simplify those calculation using Ekadhik and Purved. But if we don't have the case where the number is ending with 9, okay, so because if I take about 1 upon 19, 1 upon 29, 1 upon 39, so here what we are finding that the numbers are ending with 9. But in case if we find that the numbers are not ending with 9, and if I say if the numbers are not ending with 9, what we can take is we can make the number end with 9 and then we can use the same procedure of using Ekadhik and Purved. Okay, so let's look up into how we can actually use the same logic of calculation. First, let me tell you what is the meaning of Ekadhik and Purved. Ekadhik and Purved means one more than the previous one. इसका मतलब जो भी हमारा नंबर होगा इसका हम +1 कर देंगे and that value will be used for computations. Another thing is that जब हमने numbers को division सीखा था ending with 9s like 1 upon 19, 1 upon 29, 1 upon 39, तो what we have looked up into that we can proceed with the calculation either from left to right or from right to left. So आज के इस सेशन में हम जो कैलकुलेशन है हम दोनों अप्रोच से देखेंगे, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ़्ट हो, प्लस हम एकाधिक एंड पूर्वेण यूज़ करना सीखेंगे एंड वी वुड बी इम्प्लाइंग फॉर दोज कंडीशंस विच आर एंडिंग विथ 1, 3 and 7. Okay, so let's take the first example, like suppose we have 1 upon 7. Now if we have 1 upon 7, what we can do is that we can multiply the numerator and denominator by 7. So what we get 7 upon 49, right? Now because what I told you, हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर के लास्ट डिजिट को 9 लाने की कोशिश कर रहे हैं. That is the reason I multiplied the numerator and denominator by 7. Now once we have done this, so what we can identify from this, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट होगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 7. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन वी आर यूजिंग एकाधिक एंड पूर्वेण, ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डूइंग 4 + 1 दैट इज 5. Okay, so these are the two basic conclusion that we need to draw from this particular set of values, that is 7 upon 49. Now next, अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या यूज़ होगा, 5 यूज़ होगा. ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, हमारा डिविज़र क्या हो जाएगा, जो है हम 5 यूज़ करेंगे और ऊपर की वैल्यू हमारी जो डिविडेंड होगी दैट विल बिकम 7. Okay, so let's proceed out with the calculations. First, अगर हम लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है. सो फर्स्ट विल प्रोसीड विद द कैलकुलेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सो अगर हम 7 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो फर्स्ट इट इज़ ऑलवेज 0 पॉइंट. नाउ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज 7 1s are 7, ओके, रिमाइंडर 2. 5 को हमने 7 से डिवाइड किया, 5 1s are 5, रिमाइंडर 2. 5 4s are 20, रिमाइंडर 1. 5 2s are 10, रिमाइंडर 4. 5 8s are 40, रिमाइंडर 2. 5 5s are 25, remainder 3. 5 7s are 35, remainder 0. 5 1s are 5, remainder 2.
आई होल्ड ओवर हियर, सी वी आर गेटिंग द सेम कॉम्बिनेशन एज दिस, इसका मतलब इसके बाद हमारा रिकरिंग होगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग द आंसर, वी आर गेटिंग द आंसर एज 0.142857। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। सो वी आर गेटिंग द सेम थिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा कोशेंट होगा एंड दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग एज द रिमाइंडर। तो मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ। वी हैव 0 पॉइंट, वैल्यू हमारी क्या है, 7 है। 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2। अब हमारा 21 वैल्यू हो गया जिसको हमें 5 से डिवाइड करना है। 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 1। 14 इज द वैल्यू, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 4। 42 इज द वैल्यू, 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर 2। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 3। 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर 0। इसके बाद वही हमारा साइकिल रिपीट होगा। नाउ ये हमने स्टार्ट किया जहाँ पर हमने कैलकुलेशन लेफ़्ट टू राइट किया। नाउ अगर हम यही कैलकुलेशन राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो एज वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा, 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। अब मैं 5 का मल्टीप्लाई लूँगी, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 इज़ 28, 5 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 इज़ 42, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 इज़ 14, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज़ 21। दैट्स ऑल। 5 1 ज़ा 5, 6 7। वापस हम उसी पॉइंट पर आ जाएंगे सो दैट वी गेट 0.142857। सो ईदर इफ़ यू प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, हमारा वही आएगा, क्योंकि अगर हम फिर इसको प्रोसीड करेंगे फिर ये 0.7 करके आता जाएगा। सो क्योंकि देखिए हम करेंगे 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 6 7, तो ये हमारा रिकरिंग चलता जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न आपको एक बार पता चल गया कि आपकी ये सीरीज़ जारी है। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली प्रोसीड, और आप यहाँ पर 0 पॉइंट लिख कर स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन प्रोसीड कि अगर हमारा 1/7 दिया गया है एंड वाई आई एम स्ट्रेसिंग अबाउट कि इस नंबर को हम 9 से डिवाइड या 9 के लास्ट डिजिट में ले आएँ, बिकॉज अगर हम 9 के लास्ट डिजिट के टर्म्स में ले आते हैं तो वी कैन यूज़ एकाधिक एंड पूर्वेन एंड द कैलकुलेशन really becomes simpler either if we proceed from left to right or from right to left। तो अगर हमने किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7/49 आ गया, 9 का हमारा लास्ट टर्म हो गया, इट्स वेरी गुड। 4 को हमने 4 + 1 कर दिया, 5 आ गया, एकाधिक एंड पूर्वेन कर दिया, 7 न्यूमरेटर में आ गया है तो हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। अब हमने कैलकुलेशन अगर लेफ़्ट टू राइट किया है तो हम 5 का फैक्टर यूज़ करेंगे, 7 को हम डिविडेंट यूज़ करेंगे एंड वी कैन गो विद द डिवीजन। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर हम राइट टू लेफ़्ट यूज़ करते हैं तो हम 7 को लास्ट डिजिट करेंगे, 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेकर हम प्रोसीड करेंगे, जब तक हमारा रिकरिंग पैटर्न आ जाता है वहाँ पर हम 0 लगा के प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 0.142857 as a recurring pattern. Okay, so this is how we get the required thing. Next we'll look up into the another example, that is 1/30. Start with the next, that is 1/13. 1/13 में हमें लास्ट डिजिट को अगर 9 लाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो न्यूमरेटर में आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब हमारा लास्ट डिजिट किससे एंड होगा, 3 से एंड होगा एंड एकाधिक एंड पूर्वेण यूज़ करेंगे। सो 3 + 1 इज़ गोइंग टू बी 4। तो हमारा डिविज़र क्या आ जाएगा, 4, और डिविडेंट आ जाएगा 3। तो हम लेफ़्ट टू राइट पहले प्रोसीड कर रहे हैं, तो हमारा पहले आ जाएगा 0.3/4। अगर हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, हमने यहाँ लिखा 0 और यहाँ आ गया 3। ओके, अब 4 को करेंगे, 4 7 ज़ा 28,
remainder 0, 4 6 are 24, 25 26 27, 4 9s are 36, 0, 4 2s are 8, remainder 1, 4 3s are 12, remainder 0, 4 0s are 0, remainder 3. हम वापस इसी सीक्वेंस में आ गए. ओके, सो रिकरिंग डेसिमल का पार्ट है ये. वी हैव 0.0769223. सेम वे अगर हम इसी कैलकुलेशन को राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या कंक्लूड किया था? हमने कंक्लूड किया था कि 3 इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डिजिट. तो हमने लिखा 3, यहाँ लिखा 0. अब हम 4 का फैक्टर यूज़ करेंगे. 4 3s are 12, 4 2s are 8, 8 plus 1 9, 4 9s are 36, 4 6 are 24, 25 26 27, 4 7s are 28, 29 30. वापस हमारा पैटर्न वही आ गया. ओके, सो हम यहाँ लगा देंगे 0 पॉइंट. तो सेम वे आवर आंसर इज 0.0769223. सो आप अगर थोड़ा नंबर्स के पैटर्न को भी मैच करेंगे, दे कम आउट टू बी द सेम, इंस्पायर्ड कि हमने यहाँ पर जो है हमने डिविडेंड 3 से स्टार्ट किया था और इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो लास्ट नंबर था दैट वाज 3 एंड वी हैड स्टार्टेड विद द कैलकुलेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और यहाँ पर हमने लेफ्ट टू राइट किया था. एनी हाउ वी आर गेटिंग द सेम आंसर एंड द आंसर इज 0.0769223. ये हमारा रिकरिंग पैटर्न होगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ कि अगर हमारा नंबर 3s के साथ एंड हो रहा है तो हम उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 3 दे दें सो दैट द नंबर कैन एंड विथ 9 और हम एकाधिकेन पूर्वेण यूज़ करके हम सेम कैलकुलेशन के अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, विल टेक अनदर एग्जाम्पल. of divisibility by 11. वन अपॉन 11 है, हमें 9 के साथ एंड कराना है तो सिंपल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा 9/99. तो पहला चीज़ द लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी 9, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग 9 + 1 एकाधिकेन पूर्वेण, सो हमारा 10 आ गया. तो इसका मतलब हमारा डिविज़र क्या हो गया 10 और डिविडेंड क्या हो गया 9. पहले हम लिखेंगे 0 पॉइंट, हम लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन कर रहे हैं. 0 पॉइंट 9 को 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हुआ 9. 10 9s are 90, 0, 10 0s are 0, 9. इसका मतलब वापस हमारा वही पैटर्न आ जाएगा. सो व्हाट वी गेट 0.09 रिकरिंग पैटर्न आ गया. ये हो गया अगर हम लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं. सेम वे अगर राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आ गया था 9, तो हमने लिखा इसको 9. 10 9s are 90, वापस वहीं पर आ जाएंगे. 10 0s are 0 प्लस 9 is 9. ओके, ये पैटर्न वही आ जाएगा. सो व्हाट वी गेट 0.09, सो विच इज़ गोइंग टू बी अ रिकरिंग पैटर्न. So what we have learnt in today's session is that if we have the combination of numbers where the denominator are not ending at 9, first thing, but they are ending with 1, 3 or 7, so what we can do is that we can define a multiplying factor. Multiplying factor का choice ऐसा होना चाहिए so that the number is going to end with 9. ओके, इट मीन्स द डिनोमिनेटर में हम जो भी हमारा नंबर है चाहे वो 1, 3 या 7 है, हम उसमें ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन करेंगे ताकि हमारा नंबर जो है 9 के टर्म्स में आ जाए. जैसे अगर 1 है तो 1 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 का हो जाएगा, 3 में 3 का हो जाएगा, 7 में 7 का हो जाएगा. इस कंसेप्ट से हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 9 से एंड होगा, जिससे हम डिवीजन ऑफ 9 का लॉजिक यूज़ करके जो है एकाधिकेन पूर्वेण यूज़ कर सकते हैं और ईदर वी कैन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. थैंक्स अ लॉट.